Hello and welcome to this edition of The Hotspot, brought to you by JB Power Consultants. I am Rahul Srivastav. If dynasties are the flavor of politics of a state, then Haryana can be called the master kitchen. Since its formation, the state's politics has been dominated by 5 families. The Chautalas of Sirsa, the Bishnois of Hisar, the Lals of Vivani, Sir Chotu Ram's family, and the Hudas of Rohtak. In today's edition, I bring to you a leader whose family's association with the Congress party is nothing less than a century old. The next gen of the Huda family, Member of Parliament, Dipendra Huda. There are families in politics. There are families in politics for a very long time. But today in the hotspot, I have with me somebody whose association with the Congress party is not 10 years, 20 years, 30 years, but 100 years. Almost 100 years. Dipendra Huda, Member of Parliament. Welcome to the hotspot. Thank you. Dipendra, what a legacy you have. To be part of a party, Ranbir Huda ji, amazing history. 7 elected legislative entities he was part of. There is virtually nobody like that in the country. Yes, absolutely. But that's my grandfather. Yeah. Actually, we've been associated with the Congress party for more than 100 years. My great-grandfather was also the founding district Congress committee president at the time when we were in the midst of the freedom struggle. And he was also sentenced to Kala Pani while fighting the British. My grandfather, before he became elected to 7 different houses, he was also, he spent 8 years in the British prison fighting for country's freedom. Sir, Mr. Mathuram, your great-grandfather, his association I have traced back is 1923 when he joined the Congress party. No, that 1923 is when the first elections took place and he contested the election. At that time, Congress did not contest the election. Swaraj Party, which was Motilal Nehruji's one faction of the Congress, wanted to contest the election led by Motilal Nehruji. So he contested the election in 1923, but he was already part of the Congress party. He had already been sentenced to Kala Pani in 1908. That means the part of the freedom struggle and then the Congress party. Absolutely. Isn't it a very heavy load of legacy to shoulder? No, I'm proud of the fact. Responsible. No, I'm proud of the fact that my family has had a role to play in the freedom struggle, in the social upliftment of my area, and then my family has been involved in this formative stages of our nation through the means of politics. Be it my grandfather, like you said, he spent about 26 years in Parliament, and then 10 years he was minister in the state. Or then my father took over, and he has served the people of Haryana as chief minister for consecutive terms, and thrice he was leader of opposition also, and many times MP. So I think to inherit that legacy is also a privilege, but also, like you said, that when you step into politics, then everybody is also seeing you and judging you from that point of view. So it makes the first step in the door becomes easier for you, absolutely. But at the same time, subsequently, then you have to win the people's trust on your own. But you were reluctant to join politics. यानी आपका मन उतना नहीं था. देखिए, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं था. मैं अपने प्रोफेशनल करियर की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था. मैंने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद मैं बाहर चला गया और इन्फोसिस में उस समय मैं कर रहा था. बाहर फिर यूएस से ही मैंने एमबीए किया और वहीं मैं काम कर रहा था. और जब काम कर रहे थे तो
मैं समझता हूँ कि वो जो प्रोफेशनल करियर की एक ट्रैक है वो अच्छा था, ट्रेजेक्ट्री होता है, ट्रेजेक्ट्री होती है, वो अच्छी थी, वेरी सेटिस्फाइंग. आपने घर खरीद लिया था, you had bought a car. Absolutely. So I was basically living in Dallas those days. So you have done some good research. So I was pretty much settled in Dallas. नहीं, मैंने एक And I और was- रिसर्च करी है, बहुत सारे नेताओं के बच्चे जो विदेश पढ़ने जाते हैं वो मामूली डिग्री लेके आते हैं. आई विल लाइक दीपेन टू टेल अस कि ये अल्फा बीटा गामा अवार्ड क्या था. देखिए, in my this was when I was doing MBA in finance. So this is top 1% of the class. They get honored. You were a good student, Dipin. I've been a reasonably good student. Even in my engineering, I did well, and I was, one of the toppers in my engineering also. Really? And then I was a good student. Even in when I did subsequently, I did law from Delhi University. While being a member of parliament, I did law from Delhi University. That is post 2005. Post 2005. So when I sat for the Delhi University entrance exam, about post 2005, I did from 2016 to 2019 in my third term as MP. Oh. I got 36th rank. So which was, in Delhi University is highly competitive. So I've been a reasonably okay student. Difficult है somebody who is ऐसे mindset में आ गया एक career trajectory में कि professional merit, अचानक politics जैसा field. No. It was not achanak. From the very beginning, from my childhood, from my school time, I was very much associated with my area, all the people, and I had seen politics when I was growing up. At the same time, of course, I was stepping towards a professional career, but every time, all those years, I was always on those horns of dilemma, where on one side, I was very happy with the superficial life that America had to offer, the corporate America had to offer. But on the other hand, I was always, I had this thing in my heart that, something is amiss. And that something was that my heart lied in India, my heart lied in Haryana, my heart lied with my people. And so eventually I took the decision, I came back. डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की जब बात होती है तो लोगों को लगता है कि इन लोगों के लिए सब कुछ आसान होता है. मुश्किल भी होती है लाइफ यार. ये जो नेताओं के बच्चे होते हैं, यानी प्रोमिनेंट नेताओं के बच्चे जब हॉस्टल में जाते हैं तो उनको रैगिंग भी ज़्यादा होती है. यू हैड एन इंसिडेंट कि जिसमें आपको लगा कि बीइंग ए नेता का बेटा ज़्यादा रैगिंग होती है, ज़्यादा टफर हो जाती हैं कई चीज़ें. नहीं, पार्ट ऑफ दी है. आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप. आप, मुझे लगता है कि यू गेट noticed more. Everybody knows your last name and लेंस everybody. में रहते हैं हमेशा. So when you sort of, I think, enter an educational institution, so sometimes the seniors and all, they are sort of looking at the last name, and so it's part of the game. So it's, I think, हाँ. सुना चोट वोट भी लगी थी. कहते हैं, that was one incident where all when I was in first year of my engineering. And like I said, you become center of attraction. So the seniors sort of want to set things right. So they sort of gave me a punishment that you have to stand in the sun, thinking for as long as you can. So they were thinking that eventually I'll give up and I'll say okay. So but then I'm a little stubborn that way. So I just kept on standing. That eventually I fell down. I sort of after in about evening. So by the evening, I sort of became unconscious. I fell down and I had a big sort of head injury at that point of time. So I think that's the incident that you. हरियाणवी उतनी, यानी your tongue does not have वो हरियाणवी accent नहीं है आपने ज़्यादा. नहीं है हरियाणवी. जब हरियाणवी भाषा बोलनी होती है तो हम बोलते हैं. Okay, now this यात्रा. What is this यात्रा जो अभी आपने अभियान चलाया है? देखिए हरियाणा जो कि एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट था, और आप किसी भी डेवलपमेंटल इंडिसेस पे देखेंगे तो हरियाणा देश में विकास, खुशहाली में देश में आगे जो राज्य थे, अग्रणी जो राज्य थे, उनमें था. 2014 से पहले आप देखें तो प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में हम नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में हरियाणा का नाम था, आपस में खुशहाली, अमन, चैन, शांति के साथ हरियाणा आगे बढ़ रहा था. लेकिन फिर बीजेपी की सरकार, बीजेपी को मौका मिला. इन 10 वर्षों में
वो हरियाणा जो देश में विकास और खुशहाली में नंबर 1 था, आज वो हरियाणा 10 वर्ष के बीजेपी के कुशासन के बाद वही हरियाणा आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 सबसे आगे। भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं, भारत सरकार के संसद में दिया गया जवाब बता रहा है। मार्च जो उन्होंने डेटा आपके सवाल का ही मैंने सवाल पूछा, उसी का जवाब, जब उसी के जवाब में बेरोजगारी में देश में नंबर 1। और गृह मंत्री जी कल आए थे यहाँ, अपना उनकी सभा थी हरियाणा में, उन्हीं के महकमे का डेटा ये बता रहा है, नेशनल NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, कि अपराध दर में हरियाणा देश में नंबर 1, हत्या दर में देश में नंबर 2, फिरौती दर में नंबर 1, अपहरण दर में नंबर 1, डकैती दर में नंबर 1, महिलाओं के ऊपर अपराध में नंबर 1, तो बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, नशा पंजाब से ज़्यादा, और ड्रग अब्यूज़ रिलेटेड डेथ्स लास्ट 2 ईयर्स हमारी पंजाब से ज़्यादा है हरियाणा के अंदर। तो नशे में देश में नंबर सबसे आगे हरियाणा का, विकास की पटरी से उतर गया, और बेरोजगारी, नशा, और साथ में हरियाणा के नौजवान देश छोड़कर पलायन में भी सबसे ज़्यादा अगर हो रहा है कहीं से, डंकी के रास्ते, आपने पिक्चर देखी होगी, वो हरियाणा गांव के गांव खाली हो रहे हैं, क्योंकि हरियाणा का नौजवान के हाथ इतनी निराशा लगी इस सरकार में 10 वर्ष में। तो आज हरियाणा का जो फिज़ा है वो क्यों बिगड़ी, तो इसीलिए हिसाब मांग रहे हैं हम, और हमारे अभियान का नाम है हरियाणा मांगे हिसाब। और मैं समझता हूँ जब से अभियान हमने चलाया है, भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी तिलमिलाई हुई है, ऐसा दिखाई दे रहा है। बात करी तो उन्होंने कल एक जो अपने भाषणों में एक बात बोली कि हरियाणा में आकर के उन्होंने बोला कि ओबीसी का कोटा कर्नाटका में मुस्लिम्स को दे दिया गया है, हम हरियाणा में ऐसा नहीं होने देंगे। देखिए, कांग्रेस की सरकार थी जब हरियाणा में, हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उस समय क्लास 1 और क्लास 2 में ओबीसी का आरक्षण हमने हरियाणा में 10% से बढ़ाकर 15% करने का काम किया था। BCA का अलग 10% और BCB का अलग 5% बढ़ाकर ओबीसी का आरक्षण पिछले मंडल कमीशन के 91 के उसके बाद इन वर्षों में अगर बढ़ा है, तो हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। तो ये सच्चाई। और बीजेपी ने पिछले 10 वर्ष से कह रहे हैं इसको और बढ़ाएंगे, 1% बढ़ाएंगे, खट्टर साहब ने बीच में बोल दिया था, लेकिन वो भी नहीं बढ़ाया। और हमारा स्टैंड इस पर बिल्कुल क्लियर है, हमने पहले बढ़ाया था, 10 से 15% किया था। और जातिगत जनगणना हरियाणा में कांग्रेस पार्टी कराने का काम करेगी, हमारे घोषणा पत्र में है, जो हमारी केंद्र में भी हमारे घोषणा पत्र में था, इंडिया के उसमें भी है, हाँ इंडिया के उसमें भी है, केंद्रीय स्तर पे भी है, और हमारे प्रदेश में भी जातिगत जनगणना के अनुसार इस ओबीसी के आरक्षण को क्लास 1 और क्लास 2 में भी, और जैसे पहले हमने बढ़ाया था आगे बढ़ाने का काम करें। इन्होंने 10 साल क्या किया, 10 साल जो ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण भी था, उसमें जो क्रीमी लेयर थी, 8 लाख का क्रीमी लेयर थी, उसको इन्होंने 10 साल तक 6 लाख तक घटा के रखी, और जो है क्रीमी लेयर घटाने का काम किया। 8 लाख तो केंद्र सरकार की, हरियाणा तो पर कैपिटा इनकम में केंद्र सरकार से कहीं ज़्यादा है। और जब अब हमने अपना जो है एक संकल्प, कांग्रेस पार्टी ने ये कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुड्डा साहब ने, हमने कहा कि इसको 10 लाख तक करेंगे, तब जाकर अब आ रहे हैं आखिरी 1 महीने में। Is that a possibility? Quota for Muslims? मैं समझता हूँ कि इनको जो है हरियाणा के अंदर जो है, आप परिस्थितियाँ देखें, हरियाणा के अंदर ये इशू ही नहीं है, ये इशू ही नहीं है हरियाणा के अंदर, इस तरह के डिमांड्स का ये इशू ही नहीं है, ये इनका प्रयास है। भाजपा की कोशिश रहती है कि धार्मिक या जातीय, ये आपको लगता है अमित शाह ने जो बोला, इट वाज एन अटेम्प्ट टू पोलराइज, धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण किस तरह करके बिना काम किए, बिना हरियाणा का इन्होंने भट्टा बिठा दिया। किस लिए हारे ये चुनाव? क्योंकि कुछ किया नहीं हरियाणा में, हर वर्ग दुखी है। अब मैंने जैसे कहा आपको कि देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी, देश में रिकॉर्ड महंगाई, देश में रिकॉर्ड नशा, देश में रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा अपराध हरियाणा के अंदर। गरीब समाज की सारी योजनाओं को बंद कर दिया। हमारे समय ऐसी समाज के लिए और जो बैकवर्ड क्लास ए समाज के लिए 100 गज के प्लॉट की हमारी स्कीम थी, जिसमें 4 लाख 100 गज के प्लॉट दिए गए थे। उन प्लॉटों के साथ साथ इंदिरा आवास योजना की स्कीम थी, लगभग 3.5 लाख परिवारों को मकान मिले थे। और पानी की पीने की टंकी, टूटी नल की एक हमारी अलग से स्कीम थी। 20 लाख बच्चों को जो है, गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल के अंदर वजीफे की स्कीम थी। लगभग ये स्कीम या तो ख़त्म कर दी इन 10 साल में, या इनको काफ़ी कर्टेल कर दिया। और दूसरी ओर
गरीब आदमी पे ये चोट, संविधानिक हक, ऐसे समाज के और ओबीसी समाज के संविधानिक हक, यानी कि सरकारी नौकरियां और सरकारी नौकरियों में आरक्षण, उस पर इतनी बड़ी चोट हरियाणा में मारी गई है। सरकारी 2 लाख पद समाप्त कर दिए गए, और जो दिए भी गए 2 लाख पद तो समाप्त ही हो गए। इसके अलावा जो लगाए गए कौशल निगम के माध्यम से, मैं आपको, आप सरप्राइज होंगे, मैं जानकारी मिला दूं, उस बिना रिजर्वेशन और बिना पेंशन के इस सरकार ने कौशल निगम, कच्ची भर्तियां, सरकार खुद ठेकेदार बन गई। हरियाणा के अंदर ऐसी स्थिति है। पिछले पाँच वर्ष में हरियाणा में केवल 10,000 पक्की नौकरी लगी। 10,000 लगभग केवल यही पक्की लग पाई, क्योंकि जो है बाकी जो भर्तियां थी वो सीटी में उलझा दी, भर्ती घोटालों में उलझा दी गई, या पेपर लीक घोटालों में उलझा दी गई। ये 5,000 भी जो लगी, इनमें भी हरियाणा से ज़्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चे इनमें लग गए। तो हरियाणा का नौजवान विदेश में पलायन नहीं करेगा। एक तो इन्होंने पोर्टल्स खोल दिए बहुत सारे, जिससे ईज ऑफ वर्किंग जो हो गया, खराब हो गया। ये मैं समझता हूँ कि पोर्टल के बारे में ये पूछना चाहता हूँ। कल भी मैंने एक सवाल पूछा था जब गृहमंत्री जी जब आए थे, कि ये गुजरात में पोर्टल नहीं है, हरियाणा में पोर्टल, हरियाणा के अंदर ये पोर्टल नीति आ गई। प्रॉपर्टी आईडी, नगर निगमों के भ्रष्टाचार केंद्र बन गई है। प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पहचान पत्र, आदमी को बहुत सारे उसके थ्रू उलझा दिया, कागजों में और पोर्टल्स में उलझा दिया। अब गरीब आदमी में आपसे पूछना था राहुल जी, को गरीब आदमी है, उसको कोई जन सुविधा, सरकार की तरफ से सुविधा चाहिए, उसको घर जाके दो आप, वो अपना काम काज संभालेगा या लाइनों में लग के अपने कागज ठीक कराने के लिए अपना काम काज छोड़ के लाइनों में लग के सरकार के चक्कर काटे जाएगा? तो ये पोर्टलों ने उलझा दिया जनता को। और पोर्टलों का उद्देश्य होना चाहिए कि जो है लोगों को सहूलियत दे, मगर अगर जन विरोधी अगर नियत से और लोगों को उनकी सहूलियतों से वंचित करने की नियत से लागू किया जाएगा, तो वो पोर्टल, मेरे को ये कहा जाता है कि हम तो टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, और हुड्डा साहब जो है और दीपेंद्र जो हैं वो अपना टेक्नोलॉजी के विरोध कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ इनको, ये मैं तो स्वयं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं तो स्वयं इन्फोसिस में काम किया है। इस तरह की ईज़ ऑफ जो है गवर्नेंस के जो है पोर्टल्स तो मैंने खुद अपने सॉफ्टवेयर हाथ से लिखे हैं, तो मैं समझता हूँ कहाँ इनका प्रयोग किया जा सकता है अच्छी तरीके से, मगर वो किया जाए लोगों को सुविधाएं देने के लिए, उनकी सुविधाओं से वंचित रखने की नियत से अगर करेंगे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था खट्टर साहब को, एक नॉन जाट को चीफ मिनिस्टर बना करके, क्योंकि 29% अगर जाट है तो नॉन जाट का इमोशन लेकर के चले जाइए, फेल हो गया। नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि इसमें कोई जातिगत बात होनी ही नहीं चाहिए। किसी भी प्रदेश में कोई भी राष्ट्रीय दल है, उसका तो नीति और नियत ये होनी चाहिए कि भाई प्रदेश के लिए कौन प्रदेश को आगे लेके जाए, जो भी सक्षम हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उसको अवसर मिलना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, किस सोच के साथ किया, वो आप इनसे पूछना। Who is the biggest? You see, Haryana की politics was a battle between tall Jat leaders, but we have seen the decline. एक decline देख रहे हैं हम, जो पुराने क्लैन से 5 क्लैंस के बीच में पूरी हरियाणा की पॉलिटिक्स चलती थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि चौटाला's virtually over, भजनलाल's not much left. No, sorry, he's not one. तो आज की तारीख में टॉलेस्ट आपको कौन जाट नेता दिखता है? देखिए, ये Is there a contest between Mr. भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा? देखिए, इसमें मैं बताऊं कि ना तो हुड्डा साहब अपने आप को एक किसी जाति या जनता मानती है कि नहीं, जाति या धर्म के नेता के रूप में देखते हैं अपने आप को, ना मैं देखता। मैं समझता हूं कि हरियाणा कॉन्टेस्ट चल रहा है, हरियाणा को बचाने का कॉन्टेस्ट चल रहा है। एक तरफ भाजपा सरकार है और दूसरी तरफ हरियाणा की जनता है। इनमें कौन जीतेगा? और हरियाणा की जनता जीतेगी, ऐसा मेरा मन मानता है। हरियाणा का भविष्य बचेगा, हरियाणा का नौजवान का भविष्य बचेगा। अब आपका एक्सेंट आया है थोड़ा हरियाणवी। मुझे एक बताइए, ये इस बार कायाकल्प कैसे हुआ लोकसभा में? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पहली बार बहुत सालों बाद भूपेंद्र हुड्डा जी को एक फ्री हैंड दिया गया और उसका ग्राउंड पे असर दिखा लोकसभा चुनाव में। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए हम लोगों का धन्यवाद करते हैं हरियाणा वासियों का कि देश में सर्वाधिक इंडिया गठबंधन को मिलने वाला मत प्रतिशत अगर कहीं मिला तो वो दक्षिण के तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या तेलंगाना में नहीं है, किसी और प्रदेश में नहीं। 47.6% जो देश में सर्वाधिक इंडिया गठबंधन को वोट शेयर कहीं मिला तो हरियाणा के अंदर मिला। ना सिर्फ हमारी 5 लोकसभा सीट आई, ना सिर्फ 90 के 90 विधानसभा सीटों के सेगमेंट्स में हमारा मत प्रतिशत बढ़ा और भाजपा घटा, लेकिन हमारा मत प्रतिशत भाजपा से ज़्यादा रहा। हम ज़्यादा सेगमेंट्स में हमारी लीड आई। कारण बताइए। लोगों ने स्पष्ट संकेत दे दिया
कि आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। दो ही कारण हैं, एक तो मैंने जैसे कहा कि बड़ी हाई एंटी इनकम्बेंसी भाजपा की, और दूसरी कांग्रेस पार्टी ने इस बार बड़ी मेहनत करी है और कांग्रेस ने सही समय पर सही निर्णय लिए हैं। 2 वर्ष पहले चौधरी उदय भान जी, जो एक हमारे बहुत लोकप्रिय मैं समझता हूं कि नेता हैं, उनको जब जिम्मेदारी दी गई, हुड्डा साहब पे विश्वास व्यक्त किया गया। केंद्रीय नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं, सही समय पे ये निर्णय लिए गए, समय दिया गया और उनके लगातार जिस तरीके से लोगों के बीच में जाकर मेहनत की जा रही है, जो यहाँ की, और एक और मैं बताऊं आपको, हमारी हरियाणा की जो शुरुआत, जो कैंपेन की, जब राहुल गांधी जी आए हरियाणा से में निकले भारत जोड़ो यात्रा, उससे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष नायक जी को नई जिम्मेदारी मिली थी, तब से एक मोमेंटम बना। तो एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी भाजपा की और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके हैज क्लीन्ड अप इट्स एक्ट। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा लेसन है कि अपने स्टेट यूनिट्स में अपना लाइन ऑफ कमांड अगर क्लियर होगा तभी पार्टी सक्सीड कर पाएगी? मल्टीपल पावर सेंटर्स, आप मानते हैं हरियाणा में कांग्रेस की ट्रबल रही है? कांग्रेस एकजुट है, पूरे देश में कांग्रेस एकजुट है। नहीं, मुझे नहीं, लेट्स नॉट टॉक नाइस। आप लोग मल्टीपल पावर सेंटर हैं कि नहीं? आप लोगों को ये, आप लोग विश्लेषण करते रहते हैं और आपका अधिकार क्षेत्र भी है, उसमें हम कोई टोट टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस में एक ही धड़ा है पूरे देश में, वो धड़ा है राहुल गांधी जी का धड़ा, वो धड़ा है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का धड़ा, वो धड़ा है सोनिया जी प्रियंका जी का धड़ा, कांग्रेस की विचारधारा का धड़ा। कांग्रेस अपनी विचारधारा को, केंद्रीय नेतृत्व को लेकर पूरी देश कांग्रेस एकजुट है। मगर आप लोगों ने कोई पावर सेंटर्स का अभी प्रश्न नहीं शैलजा उठता। जी अभी आई हैं और उन्होंने कहा है कि इन फाइटिंग है। वो आप उनसे पूछिए। मैं देखिए, अरे मैं पार्टी की बड़ी नेता है, आपकी हरियाणा की नेता है, आप वो, उनका आकलन आपसे अलग है। हो सकता है, इसमें कोई ऐसी वो कह रही हैं कि आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, सबके अपने अपने विचार होते हैं। वो सीएम की कैंडिडेट भी बोल रहे हैं कि आई एम आल्सो इन द रेस। वो आप उनसे पूछिए। आर यू इन द रेस? हम तो नहीं है। क्या हुड्डा जी इज अ कैंडिडेट फॉर द चीफ मिनिस्टर? देखिए, प्रश्न ये नहीं है। यानी देयर इज नो लीडर टॉलर देन हिम इन द कांग्रेस टुडे। नहीं, देखिए, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि हरियाणा में परिवर्तन आए, हरियाणा दोबारा से विकास खुशहाली की पटरी पे जाए, हरियाणा के नौजवानों का भविष्य बचे। बहुत बड़ा प्रश्न है ये। और ये जो कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बने, देखिए हमारा एक और मैं आपको बताऊं, आपने पूरा नारा नहीं सुना, हरियाणा मांगे हिसाब। भाजपा से तो हम हिसाब मांग रहे 10 साल का, लेकिन आगे उसकी लाइन है कांग्रेस से ही आस। तो कांग्रेस सरकार बने, और मैं समझता हूँ हमारी प्रक्रिया रहती है, कांग्रेस जब सरकार बनेगी तो विधायक दल की जो है अपना एक प्रक्रिया रहती है। विधायक दल जो है केंद्रीय नेतृत्व जो है, मैं समझता हूँ कि परामर्श, उस विधायक दल से परामर्श करके केंद्रीय नेतृत्व उन चीज़ों का फैसला करता है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेगा या एडमिट नहीं करेगा तब तक सोल्यूशन नहीं निकलते। आपने अब सारी प्रॉब्लम्स हम आपके आगे आइडेंटिफाई किए, जरूरी नहीं। नहीं, मेरे लिए आगे सामने नहीं करी, मगर हाँ हम लोग सवाल तो पूछेंगे। हाँ जी, हाँ जी। क्या है कि अशोक तंवर जी कहते हैं कि उनको गुटबाजी ने निकलवा दिया बाहर, उसके बाद आपने अजय माकन जी का चुनाव हरवा दिया। यानी कैसे हार गए बताइए? अजय माकन बड़े नेता हैं। नहीं, वो तो देखो कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई थी उनके चुनाव में, तो ये अब जग जाहिर है। जो है, एक कांग्रेस की एक ऐसी विधायक थी, एक जो विधायक थी, उनके बारे में ये आया है कि उनका शरीर कांग्रेस में था लेकिन मन भाजपा में था। नहीं, अब सब सही जगह पहुंच गया। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द हमारे पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब के हैं। तो जब अब ये तो बातें नहीं, तो वो जो जिनका तन इधर था वो अब सही जगह पहुंचा है कि नहीं? वो तो देखिए, वो आप उनसे पूछिए। नहीं, मगर मेरा अगर मन जिसका जहां हो उसको वहीं रहना चाहिए। एक बड़ा नुकसान हो गया कांग्रेस को, किरण चौधरी जी चली गई बीजेपी में। देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में बड़ी मजबूती से कदम आगे बढ़ा रही है। किरण जी जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनिए, लगातार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में जितनी ज्वाइनिंग हुई है, शायद देश में शायद कहीं नहीं हुई हो। पिछले 2 वर्ष में 40 से ज़्यादा पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, एक मौजूदा सांसद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। 3 हमारे निर्दलीय विधायकों ने चुनाव के बीचों बीच, लोकसभा चुनाव के बीचों बीच, और हरियाणा के सबसे बड़े नेताओं में से एक चौधरी साहब कांग्रेस में आ गए। हाँ, वो भी आए। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी, जिनकी जात आप बात कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। और 3 हमारे जो विधायक सिटिंग एमएलएज, उन्होंने, इंडिपेंडेंट एमएलएज ने भाजपा से समर्थन वापस लेकर अभी कांग्रेस पार्टी को समर्थन पत्र दिया है, हुड्डा साहब और उदय भान जी को। तो कहने का मतलब ये है, जब इतने विधायक, पूर्व विधायक और इतने
लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो एकादा कोई मैं समझता हूँ नहीं, कि लेकिन अब जो है, आपने अगर कोई आपने रणदीप सुरजेवाला को चुनाव हरवा दिया, बेचारा तौबा कर गया वहां से। पूरी बात जो है राहुल जी, उसमें क्या है कि अगर सारी कांग्रेस में होने लगे तो हरियाणा में बोलते हैं टोक लग जाती है। तो टोक लगने के लिए जो है टोक ना लगे तो एक आधा कोई तो गाड़ी में डेंट मार देते हैं एक आधा जो है ना, एक आधा कोई बीजेपी में भी जो है हो जाए तो हमारी टोक नहीं लगेगी। बाकी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी मजबूत है। बेचारा रणदीप सुरजेवाला जी को आपने चुनाव हरवा दिया। देखिए, अब आप लोगों के विश्लेषण की बात है, ये उन्होंने तो नहीं कभी बात की। नहीं, लेकिन ग्राउंड पे कहते हैं लोग। नहीं, आप उनसे पूछिए वो क्या। बट इज दैट अ प्रॉब्लम रणदीप, दीपेंद्र, समवेयर कि कहीं पे ये बात एडमिट करनी पड़ेगी कि कांग्रेस को एकता का एक अभी चुनाव आएंगे। कांग्रेस एकजुट है, हरियाणा में कांग्रेस पूर्णतः एकजुट है। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, हरियाणा में हमारे नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में, सब पूरी कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के सहयोग से कांग्रेस एकजुटता से चलेगी और हरियाणा में सरकार बनाएगी। आपकी एक चीज़ मैंने देखी कि आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, मगर समटाइम्स वन हैज सीन कि दीपेंद्र कैन बी वेरी फर्म। और उसका एक मैंने उदाहरण देखा अभी लोकसभा में, जब शशि थरूर जी की शपथ हुई। क्या कहना है आपका, वो जो हुआ उस समय प्रकरण हुआ लोकसभा में? देखिए, वो उससे तो मैं कह चुका हूँ, जब जय संविधान के उद्घोष पर अगर इस महान सदन के आसन की तरफ से कोई टोक टिप्पणी की जाएगी तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में मैंने उचित समझा कि मैं कम से कम उठकर वो ऑन द रिकॉर्ड एक बात कहूँ कि जय संविधान ये देश का संविधान है, जिसके आधार पर ये संसद चल रही है। तो ये संविधान के में कि जय बोलने पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अपनी बात कही। उसके बाद माननीय आसन ने जो कहा वो भी देश के सामने है, मैं उस पर भी कोई मैंने टिप्पणी करी नहीं। मेरा चेयर से उलझते नहीं है, मैंने उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो उन्होंने कहा वो देश के सामने है, वो देशवासी उस पर निर्णय करें, आप निर्णय करें और माननीय आसन भी। क्या आपको लगता है कि इस शपथ पढ़ने के बाद जय श्री राम ठीक है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिसकी जैसी भावना, मैं तो उसमें मेरे को तो कोई आपत्ति नहीं। फिलिस्तीन बोला ओवैसी साहब ने। देखिए मैं समझता हूँ जो जय संविधान बोलना एक उपयुक्त उद्घोष था, ऐसा हमारा मानना है। किसी और जो है अपना मैं उद्घोष के बारे में मैं नहीं कह सकता। संविधान एक ऐसा हमारा सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर देश चलता है। बाबा साहब के नेतृत्व में जो संविधान बना उसी के आधार पर तो देश चल रहा है। हाउ फ्रेंडली आर यू विद राहुल गांधी? यानी हमारे नेता है राहुल जी, उनके प्रति यारी दोस्ती, उनके प्रति हमारी एक आस्था है, उनकी तरफ हम देखते हैं और हमें पूरा विश्वास है। राहुल जी ने देखो जो लड़ाई लड़ी है वो साधारण लड़ाई नहीं। हम लोग बगल से दूर से देखते हैं, आप साथ में बैठ के देखते हैं। राहुल जी ने जो लड़ाई लड़ी है, कितना बदल रहा है वो साधारण। राहुल जी की बदलाव में क्या कहेंगे? कुछ अचानक आप एक बात बताइए मुझे, आप कोई चांस दे रहे थे कांग्रेस पार्टी को? आपसे मतलब तात्पर्य मीडिया जगत या देश के विपक्ष को? देश के विपक्ष को मृतप्राय जब माना गया था उस समय राहुल जी निकले थे कन्याकुमारी से, कदमों कदमों पे उन्होंने कश्मीर तक पहुंच गए और एक जागृति लेके आए देश की विपक्ष के लिए। और ये जो नतीजा आया है लोकसभा चुनाव का, उसने दिखा दिया है कि देश के लोगों ने देश के विपक्ष को, एक मजबूत विपक्ष को खड़ा कर दिया। इसकी अगर किसी को श्रेय जाता चाहिए सबसे ज़्यादा तो राहुल जी को जाना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ, चेंज्ड मैन, क्या आप कुछ बदलाव दिख रहा है? देखिए, यानी कंसिस्टेंसी दिख रही है। देखिए, हर व्यक्ति, मैं इस बात के मैं सौभाग्यशाली हूँ, पिछले 20 वर्षों से सदन में राहुल जी के साथ मुझे और पार्टी के अंदर जब से मैं समझता हूँ कि मैंने उनको नज़दीकी से उनके नेतृत्व को देखने का मुझे अवसर मिला है। क्योंकि शुरुआत से जब वो जैसे उन्होंने पहली बार वो आए उसी समय मैं भी पहली बार आया और तब से लेकर अब तक। और ये मैं मानता हूँ कि जो है उन जैसी सच्ची नीयत का व्यक्ति मिलना राजनीति में कोई मैं समझता हूँ असंभव ही आप ये मानिए। जिस सच्ची नीयत से वो लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं और लोगों की सोचते हैं। हाँ, आप कह रहे हैं कि देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स हर व्यक्ति में अपने अपने जो है बदलाव आते हैं और वो एक अच्छी बात है, वो तो बदलाव आते ही। और
मगर जो एक चीज़ में जो बदलाव मैंने नहीं देखा उनका 20 वर्ष में, वो उनकी नीयत है। उनकी नीयत पे आप कभी प्रश्न चिन्ह आज से 20 वर्ष पहले नहीं कर सकते थे, और मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ, जीवन के अंतिम सांस तक उनकी नीयत पे कोई प्रश्न नहीं उठा पाएगा। ये चुनाव अगला आने वाला, क्या आपको लगता है कि देश की पॉलिटिक्स तय करेगा हरियाणा का? हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीतेगी प्रचंड बहुमत से। आपने एक भविष्यवाणी की थी लास्ट टाइम। और ये मैंने बिल्कुल करी थी। लास्ट टाइम मेरी भविष्यवाणी थी कि जेजेपी और INLD ये जनाधार इनका रहेगा नहीं, और हर सीट पे जमानत जब्त होगी। और आपने देखा होगा हरियाणा में 2 मुकाबले चले, एक भाजपा और कांग्रेस का, और दूसरा मुकाबला चला नोटा का जेजेपी और INLD के साथ। जमानत जब्त हो गई हर सीट पे। और आज मैं दूसरी भविष्यवाणी कर रहा हूँ, लोकसभा चुनाव में लोगों ने भाजपा को किया हरियाणा में हाफ, विधानसभा चुनाव में लोग हरियाणा के करेंगे भाजपा को साफ, और झटका मिलेगा, केंद्र सरकार को भी झटका मिलेगा। ये 2 पार्टी बैटल हो गया ना हरियाणा, अब बाकी खत्म। हाँ, इस चुनाव में बिल्कुल स्पष्ट रूप से 2 ही पार्टियों की आपस के अंदर मुकाबला रहेगा। बाकी पार्टियों का मुकाबला नोटा से ही रहेगा। पर्सनल सवाल पूछूं छोटा सा, एज अ सन, क्या दीपेंद्र हुडा विल लाइक टू सी हिज फादर एज अ CM? आप क्या चाहते हैं हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन बने? मैं तो साहब जो अच्छा आदमी वो बने, जो हरियाणा के लिए अच्छा काम कर दे वो बन जाए। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा के लोग ऐसा ही फैसला करेंगे, मुझे विश्वास है। आप एक टाइम पे उनकी कांग्रेस की सरकार बनेगी, जैसे मैंने कहा हरियाणा के अंदर कांग्रेस की बड़े बहुमत के साथ सरकार बनेगी, और जो हुड्डा साहब का जो कार्यकाल है उसको लोग याद करते हैं हरियाणा के अंदर। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी की जो टीम हरियाणा के अंदर जिस तरह से मेहनत करी है, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में, नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, आदमी हैं सारे। हाँ, बड़े, यानी अब टीम आपकी क्लियर हो गई है, सारे अपने बंदे फिट हो गए ये अब आपके हमारे सारे आदमी हमारे अपने मैंने कहा कांग्रेस में कोई गुटी नहीं है दूसरा राहुल जी के अलावा, कोई कांग्रेसी तो बताओ जो हमारा अपना नाम। यानी आप ये मुझे सभी हमारे अपने। यानी जैसे हरियाणा में क्या लारा लप्पा बोलते हैं, क्या बोलते हैं हरियाणा में, क्या बोलते हैं जब कोई क्या कर रहा होता है, बेवकूफ बना रहा होता है, उसको कुछ बोलते हैं हरियाणा में। हम हरियाणवी जो हैं हम बड़े भोले वाले होते हैं। हम जो है किसी को कहा बेवकूफ बनाएंगे हम, लेकिन हम ये है कुछ बड़े अच्छे गाने सुने मैंने आपके कैंपेन में, आपकी यात्रा के दौरान। वो दीपेंद्र हुडा को दे वांट टू सी हिम इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सरकार अपनी चाहते हैं लोग। बाकी मैंने जैसे कहा कि जहाँ तक आपके प्रश्न का जवाब मैं दे चुका पहले, कि जहाँ तक मुख्यमंत्री के चेहरे की बात है वो हमारी पार्टी की प्रक्रिया है, और आप समझ सकते हैं कि हम तो अपनी पार्टी से बाध्य लोग हैं। Thank you very much, Deependra. We wish you luck. May you do well in the coming elections. Thank you very much. Thank you. एक सेकंड, ये लेपल उठा लो।